Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in forest ecosystem, today we will discuss temperate deciduous forest, temperate rainforest, and tropical rainforest. Forest ecosystem. It is an ecosystem which is characterized by the presence of trees as dominant life form. Forest ecosystems are found in the areas of land where sufficient moisture is available and temperature is not too low. The trees of a forest belong to different species of gymnosperms and angiosperms. They are of different sizes and statures. In mature forest, stratification is very distinct. Layering of trees in forest ecosystem is an adaptation for obtaining light. फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें ट्रीज डोमिनेंट लाइफ फॉर्म के तौर पर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स लैंड के ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां मॉइस्चर सफिशेंट होता है और टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होता। किसी भी फॉरेस्ट के ट्रीज़ का ताल्लुक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ से होता है। इनका साइज़ और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। मैच्योर फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज़ की लेयरिंग लाइट हासिल करने की एडाप्टेशन है। Shade tolerant shrubs and herbs are also common in a forest ecosystem. Typical forest ecosystems of the world are: first, temperate deciduous forest; second, temperate rainforest; third, tropical rainforest; fourth, montane coniferous forest; and fifth, boreal coniferous forest. शेड टॉलरेंट श्रब्स और हर्ब्स भी आमतौर पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। दुनिया के टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स दर्ज झैल हैं। नंबर 1, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नंबर 2, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। नंबर 3, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नंबर 4, montane coniferous forest, and number 5, boreal coniferous forest. Temperate deciduous forest. The dominant plant species of this type of forest are trees and shrubs which shed off their leaves during winter. Several years ago, such a forest extended throughout the northern hemisphere. Glacial ice and drought of the Pleistocene period cut it into three main parts: Western Europe, Eastern Asia, and North America. Some are cleared for fuel, lumber, and cultivation. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज में ऐसे ट्रीज और श्रब्स हैं जो विंटर के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। काफ़ी अर्सा पहले ये फॉरेस्ट पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ था। इस फॉरेस्ट को प्लीस्टोसीन पीरियड की ग्लेशियल आइस और ड्राउट ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जो कि ये हैं: वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया और नॉर्थ अमेरिका। फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को जलाने वाली लकड़ी, इमारती लकड़ी और कल्टीवेशन की वजह से ख़त्म कर दिया गया है। The remaining deciduous forest is occupied
by the dominant trees like beech, maple, oak, hickory, chestnut, tulip tree, etc. The original animals of deciduous forest are deer, bear, panther, and wild monkey. Deciduous forest has 5 layers. First, overstory of trees with crown top 75 to 174 feet. Second, secondary tree stratum with top 20 to 35 feet. Third, shrub layer 1 to 8 feet. Fourth, herbaceous layer. Fifth, mosses and lichen layer. बकिया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो डोमिनेंट ट्रीज पाए जाते हैं इनमें मैपल, ओक, हाइकोरी, चेस्टनट, ट्यूलिप ट्री वगैरह शामिल हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ओरिजिनल जानवर डेयर, बेयर, पैंथर और वाइल्ड मंकी हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की 5 लेयर्स हैं। नंबर 1, 75 से 174 फुट की क्राउन टॉप के साथ ट्रीज की ओवरस्टोरी। नंबर 2, 20 से 35 फुट की टॉप की सेकेंडरी ट्री स्टेटम। नंबर 3, 1 से 8 फुट की श्रब लेयर। नंबर 4, हर्बेशियस लेयर। नंबर 5, मॉसेस और लाइकन की लेयर। Deciduous forest is not as productive as tropical rainforest. Its productivity is more during growing season than in winter and autumn. Temperate deciduous forest is present in areas with abundant, evenly distributed rainfall and moderate temperature. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी प्रोडक्टिविटी विंटर और ऑटम की निस्बत ग्रोइंग सीजन के दौरान ज़्यादा होती है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जहां पर बारिश ज़्यादा और तकरीबन एक जैसी होती है। इसी तरह से टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज coniferous रेन फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट occurs in regions where rainfall is frequent, water supply is abundant, and climate is cool. Evapotranspiration is relatively low, so the forest is literally dripping for much of the year. टेम्परेट रेन फॉरेस्ट को कोनीफिरस रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहां बारिश फ्रीक्वेंट होती है। इससे वाटर सप्लाई ज़्यादा और क्लाइमेट कूल रहती है। एवापोट्रांसपायरेशन रिलेटिवली लो होती है जिससे साल में ज़्यादातर फॉरेस्ट में पानी की तरसील रहती है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज डोमिनेटेड बाय वेरी लार्ज coniferous trees such as redwood tree which reaches height of 300 feet, Douglas fir, spruce, etc. In addition, there are tree ferns and dicot trees. These trees are mostly evergreen. Certain epiphytic mosses, liverworts, and ferns hang down the leaves, branches, and trunks of trees. Because of cool climate, decomposers work slowly, hence logs of wood pile up over the forest floor which is covered with humus.
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़े कोनीफेरस ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि रेडवुड ट्री जिसकी हाइट 300 फुट तक पहुंच जाती है, डगलस फर, स्प्रूस वगैरह। इसके अलावा ट्री फर्न्स और डाइकाट ट्रीज भी पाए जाते हैं। ये ट्रीज ज़्यादातर एवरग्रीन होते हैं। कुछ एपीफाइटिक मॉसेस, लीवलवर्ड्स और फर्न्स पाए जाते हैं जो कि दरख्तों के लीव्स, ब्रांचेस और तन्नों के साथ हैंग होते हैं। कूल क्लाइमेट की वजह से डिकम्पोजर्स आहिस्ता वर्क करते हैं। इस वजह से लकड़ी की गीलियाँ फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं जो ह्यूमस से कवर होता है। Dear students, here we can see large coniferous trees like redwood tree, Douglas fir and spruce. Here we can see mosses, liverworts and ferns. Productivity is fairly high, but it is in the form of wood. Much food is not available for animals, hence the biomass of animals is low. The common animals are deer, elk and lion. In New Zealand, no mammals and reptiles are existed in the original forest. Birds such as kiwi, flightless parrot, etc. are abundant. इस फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये वुड की सूरत में है। जानवरों को ज़्यादा खुराक अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जानवरों का बायोमास कम होता है। डेयर, एल्क और लायन कॉमन एनिमल्स हैं। न्यूजीलैंड में मैमल्स और रेप्टाइल्स ओरिजिनल फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते। बर्ड्स जैसा कि कीवी, फ्लाइटलेस पैरेट वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट अकर्स इन साउथ एशिया, सेंट्रल अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ अमेरिका. The climate of forest is hot and wet. Plenty of water and nearly constant high temperature throughout the year are available in tropical rain forest. Richness and diversity of life is a characteristic of tropical rain forest. Tropical rain forest साउथ एशिया, सेंट्रल अफ्रीका और अमेरिका के ट्रॉपिकल पार्ट में पाया जाता है। इस फॉरेस्ट की क्लाइमेट हॉट और वेट होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरा साल मुनासिब मिक़दार में पानी मुहैया होता है और मुस्तकिल हाई टेम्परेचर रहता है। बहुत ज़्यादा तादाद में जानदारों का पाया जाना और लाइफ की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खासियत है। Trees are usually broad-leaved. Leaves are shed irregularly, not in a definite season as in deciduous forest. This forest is therefore always evergreen. There is abundant growth of plants of numerous species. It is very rich in woody species. Trees and other plants have competition for light. Layering is therefore very distinct. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आमतौर पर चौड़े पत्तों वाले ट्रीज पाए जाते हैं। डिसीडुअस फॉरेस्ट के बरक्स डेफिनेट सीजन में पत्ते नहीं गिरते, बल्कि पत्ते इरेगुलरली गिरते हैं। इस वजह से ये फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहता है। बहुत सी स्पीशीज़ के प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर होती है। इनमें वुडी स्पीशीज़
ज़्यादा पाई जाती हैं। ट्रीज़ और दूसरे प्लांट्स में रोशनी के लिए कंपटीशन होता है। इस वजह से लेयरिंग नुमायाँ होती है। Many trees are covered with epiphytes such as orchids, pineapple, and ferns. This forest is famous for its climbing vines. Cauliflower, which is bearing of flowers and fruits on old stems and even on tree trunks, as in Theobroma and Diospyros, is a common phenomena. बहुत से ट्रीज एपीफाइट से कवर होते हैं, जैसा कि आर्चिड्स, पाइनएप्पल और फर्न्स। ये फॉरेस्ट क्लाइंबिंग वाइन्स की वजह से मशहूर हैं। कालीफ्लोरी, जो कि एक कॉमन फिनोमिना है, इसमें ओल्ड स्टेम और ट्री ट्रंक पर फ्लावर्स और फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसा कि थियोब्रोमा और डायोस्पायरोस में। Dear students, here we can see cauliflower in Theobroma and Diospyros. Trees are tall and have usually column-like trunks which are unbranched up to small crowns. Many species of trees have plank-shaped buttresses rising along the trunk from the main root, as in Mora, Ceiba, etc. Other trees have large stilt or prop roots supporting the vast spreading branches, as in Ficus. ट्रीज टाल होते हैं, इनके तने सीधे और अनब्रांच्ड होते हैं, इनके ऊपर स्मॉल क्राउन्स होते हैं। कुछ ट्रीज में मेन रूट से ट्रंक पर प्लैंक शेप उभार होते हैं, जैसा कि मोरा, सीबा वगैरह में। दूसरे ट्रीज में प्रॉप या स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं, जो कि ब्रांचेस से नीचे लटकी हुई होती हैं, जैसा कि बड़ में। Dear students, here we can see plank shaped buttresses rising along the trunk in Ceiba, and also we can see stilt of prop root in Ficus. Tropical rainforest possesses high degree of productivity which decreases from above to downwards because number of consumers is high. A large number of herbivores, predators, and insects are found in it. Monkey, lemurs, snakes, and birds are found. Similarly, elephant, lion, wolf, jackal, rodents, and other mammals live on forest floor. Tropical rainforest produces many valuable and beautiful hardwood. It is a region of industrial rubber and cacao plantation. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जो कि ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स की तादाद ज़्यादा है। इनमें हर्बीवोर्स, प्रीडेटर्स और इंसेक्ट्स की काफ़ी तादाद पाई जाती है। मंकी, लीमर्स, स्नेक्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट फ्लोर पर एलिफेंट, लायन, वुल्फ, जैकाल, रूडेंट्स और दूसरे मैमल्स रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत वैल्यूएबल और खूबसूरत हार्ड वुड पैदा करता है। ये इंडस्ट्रियल रबर और काकाओ प्लांटेशन का रीजन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।